Hello students, we are doing second chapter of economic part 1. Capital goods, already we have discussed something about the capital goods. Capital goods are those goods which not lead to the direct satisfaction to the human being. Already we have studied, and those are not consumed directly by the household. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. All capital goods are producer goods. जितने भी capital goods हैं वो सब की सब producer goods हैं, means those goods are used by the producer for further production. But all producer goods are not the capital goods. लेकिन और जितने भी producer द्वारा goods produce की जाती हैं all those are not the capital goods. वो सब की सब capital goods नहीं हैं, राइट जैसे एक ब्रेड बन गया है, उसको ब्रेड बनाने के बाद उसका डायरेक्ट कंज्यूम ही होता है कंज्यूमर द्वारा, उससे कोई दूसरा फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता. डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ऑलरेडी वी हैव डन. We have studied about the difference between consumption goods and capital goods. Consumption goods, those consumed by the consumer, and capital goods, those which used for further production. Concept and components of consumption expenditure. In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure इन द इकोनॉमी. जो कंप्लीट एक्सपेंडिचर है किसी इकोनॉमी का, दैट इज कंसिडर एज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स, द गवर्नमेंट, द नॉन प्रॉफिट. हाउस होल्ड्स, वी आर द हाउस होल्डर्स एंड वी कंज्यूम्ड ऑल हाउस होल्ड थिंग्स. And governments also the consumer in an economy. Sometime it purchase the health equipments and defense equipments also purchased by the government. And some non-profit organizations just like NGOs, temples, mosques, gurudwaras and others, all these are also the consumer in an economy, means they are purchased to satisfy the society and to satisfy the people. Next is the concept and component of investment. So in this section of the chapter we will study about the investment and about its components. First of all, we come to know about the investment, definition of the investment. What is investment? Investment refers to increase in the stock of capital. स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी एक स्टॉक रखा होता है कैपिटल का, उसमें जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज ही हमारा है जो इन्वेस्टमेंट होता है. जैसे आई लीड्स टू द इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल टू चेंज, दिस सिंबल यूज फॉर चेंज एंड के यूज फॉर स्टॉक. सो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन स्टॉक. हमारे पास पहले से जो स्टॉक है उसमें जो चेंज होता है, उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट. मीन्स चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन. जो कैपिटल चेंज है, कैपिटल चेंज को या इन्वेस्टमेंट को, इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है. सो investment is also depend as the capital formation. From the viewpoint of the economy as whole, the investment refers to total production of capital goods during an accounting year. Means this is the proper definition of the investment. Means investment refers the total production of कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का जो टोटल प्रोडक्शन होता है एक फाइनेंसिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट. द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट: फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं? लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें किसी भी तरह का जो इंक्रीमेंट है, मींस फिक्स्ड एसेट्स में किसी भी तरह का जो इंक्रीमेंट है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एज एग्जांपल, सपोज इन 2019 इसके स्टार्टिंग में हमारे पास 8 मशीनें थी इन द स्टार्टिंग, एंड एट द एंड ऑफ 2019 द टोटल मशीन्स वर 10. So there is the increment of the 2 machines, and these machines are the fixed assets. So the increment of 2 machines, basically this is known as the investment, fixed investment. So fixed investment is also called fixed capital formation. Fixed capital formation means these machines also used for further production, and production lead to the capital formation. This implies increase in the stock of capital. इससे है जो stock of capital है उसमें improvement हुआ, उसमें increment हुआ in terms of fixed assets which are repeatedly used. और ये जो मशीनें हैं, ये जो कैपिटल गुड्स हैं, ये रिपीटेडली यूज्ड हैं। इनको जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बार बार यूज़ किया जाता है और कई सालों तक है जो इसको यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स इम्पोर्टेंस। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेज, ये देखिए सभी पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेज द प्रोडक्शन capacity, and raise of production capacity leads to the higher level of output, and higher level of output leads to the higher rate of economic growth, means GDP. So all these points are related to each other. Suppose अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन लेवल अगर ज़्यादा होगा तो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक समृद्धि है, वो भी है जो हमारी ज़्यादा होगी, उसकी दर भी है जो वो ज़्यादा होगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिपेंड ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक मीन्स द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मीन्स जो फाइनल गुड्स हैं विच आर रेडी टू सोल्ड बट दोज आर अनसोल्ड गुड्स। वो फाइनल गुड्स हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, रेडी हैं मार्केट में जाने के लिए, लेकिन वो अनसोल्ड हैं, बिकी नहीं हैं। एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, दैट दोज आर नोन एज द सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो दिस द स्टॉक ऑफ ऑल दीज गुड्स नोन एज द इन्वेंट्री स्टॉक, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। इन गुड्स के या रॉ मटेरियल के स्टॉक में किसी भी तरह का जो चेंज आता है, दैट इज नॉन एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज आना, उसके अंदर वृद्धि होना। अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू कीप द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू कीप द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? Basically, regarding importance, it ensure the uninterrupted supply of inputs to procedure. If we are having the stock of raw material, so हम जो प्रोडक्शन है वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में ला सकते हैं। अवॉइड डे टू डे परचेज
from the market, or if we are having the stock of raw material, so we can avoid the day-to-day purchase in the market. And uncertainties of the market. Uncertainties of the market, which type of uncertainties are there in the market? Increase in the price and availability of raw material. It may be possible that sometime raw material not available in the market, or the possibility is there to increase the price of the raw material. So to avoid all these uncertainties of the market, the stock of these, or the inventory stock or inventory investment is must. So thank you students, have a nice day.